Hello students and welcome to Crop Course. In Agriculture Extension course, we have already started with Fundamentals of Rural Sociology and Educational Psychology, that is your Extension 111 course, and we will be covering all your syllabus as per the guidelines of 15th Committee ICAR. So we have already completed our lecture number 1 and 2, that was Sociology and Rural Sociology, and lecture number 2 was Indian Rural Society. And today we are going to start with lecture number 3, part A, and the topic which we are going to study today is social groups. So here at Crop Course, we help you to prepare for your various competitive examinations as well as your PG entrance examinations. So if you haven't subscribed to our channel yet, then do subscribe and also join us on Telegram. My name is Sharayu Deshmukh and I will be teaching you extension education. So this is a complete syllabus of rural sociology and educational psychology, and we have already completed the sociology and rural sociology chapter, and we have also seen Indian rural society chapter, and today we will be seeing social group. So yes, before starting this chapter, I would like to tell you all that if you haven't uh, listened to the previous videos, अगर आपने वो previous videos नहीं देखे हैं, that is sociology, rural society and Indian rural society, then please do check these videos. So let's get started with social groups. आज हम इसमें देखेंगे meaning, definition and characteristics of social groups. Then types of social groups. We will be seeing factors affecting the formation and organization of a group. Then motivation in group formation and role of social groups in agricultural extension. Okay, so सबसे पहले what is a group? Group मतलब exactly क्या होता है? That when two or more people they come together. Okay, it is called as a group. जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग साथ में आते हैं, then they interact with each other, they share some common values, they share some common interest. तो उस वक्त क्या होता है? एक group form होता है. And ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. ह्यूमन बीइंग क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है. इट मीन्स कि जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से इन आर लाइफ एट एवरी स्टेज ऑफ आर लाइफ हम किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा तो जरूर होते हैं. ऐसा नहीं होता कि हम अकेले ही पूरी लाइफ बिताते हैं. दिस डज नॉट हैपेंस ऑब्वियसली. हम हमेशा कोई ना कोई ग्रुप का हिस्सा होते हैं. राइट फ्रॉम अ फैमिली. अ फैमिली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रुप. सो हम फैमिली से लेके इन आर स्कूल डेज, फिर जॉब हो या फिर कहीं भी, हम हमेशा कोई ना कोई ग्रुप का हिस्सा हमेशा ही रहते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन वी कम इन कांटेक्ट विद आवर पेरेंट्स, देन आवर फैमिली इज आवर ग्रुप. फिर धीरे धीरे हम नेबर्स के कांटेक्ट में आते हैं, सो दैट इज वन ऑफ आवर ग्रुप. इन स्कूल ऑल्सो वी आर पार्ट ऑफ अ क्लास, that is also a group. Okay, and even at a workplace we are part of some or the other group. So now let us see what is the meaning of social group. A social group is a unit of two or more persons in reciprocal communication and interaction with each other. तो social group मतलब क्या होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा लोग होते हैं and they are in reciprocal communication. Reciprocal communication means two-way communication. Okay, अगर एक इंसान बात कर रहा है तो दूसरे भी उसके साथ बात कर रहे हैं. Okay, the communication is not one way. सिर्फ एक ही जन बात नहीं करता. The communication is from two ways. Okay, so the persons are in reciprocal communication with each other and they also interact with each other. The communication and interaction should not be one way. मैंने अभी अभी बताया that communication and interaction it should not be one way, okay, but it should be from both the persons. This is called reciprocal or two-way communication and interaction. At least two persons should come together. मैंने पहले ही आपको बोला है इन डेफिनेशन ऑफ दैट ग्रुप कि ग्रुप में क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं. सो एटलीस्ट कितने लोग आने चाहिए साथ में टू फॉर्म अ ग्रुप? Two persons. Okay, so at least two persons should come together to form a group who are capable of exchanging their thoughts. और सिर्फ साथ में ही नहीं आना है, but they should also exchange their thoughts. That is, they should also communicate with each other or they should also interact with each other. The next is two persons sitting closely to one another may not form a group when they do not interact. अगर दो या फिर दो से ज़्यादा लोग सिर्फ साथ में बैठे हैं, okay, but they are not communicating with each other, नहीं तो उनमें कोई भी interaction नहीं हो रहा है, so we cannot say that it is a group.
But when two persons they are talking on telephone, form a group because they are interacting with each other. अभी वो तो distance है एक दूसरे से. When they are talking on telephone, वो अलग अलग जगहों पे present है, but they are interacting with each other. Okay. Interaction बहुत important है when in case of group formation. So two persons talking on telephone they form a group because they are interacting with each other. लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग सिर्फ फिजिकली एक साथ बैठे हैं, okay, and they are not interacting with each other, okay, no interaction, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक ग्रुप फॉर्म हुआ है. So I hope that the meaning of this social group is clear to you. Please remember the points that two or more persons should come together and they should have some reciprocal communication and interaction with each other. Now next is let us see a few definitions that are given by various scientists. So first one is a social group can be defined as two or more persons who come together to achieve common objectives. अभी देखो जहाँ पे भी social group का definition होगा ना ये तो होगा ही you know that two or more persons. हमने meaning में भी देखा था that two or more persons come together. Okay, so ये तो बहुत easy है ध्यान में रखने के लिए that two or more persons come together. और क्या करते हैं वो टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, कोई कॉमन गोल होगा, कोई कॉमन टारगेट होगा, वो अचीव करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं. दैट इज नोन एज सोशल ग्रुप. नाउ क्यूबर ने एक डेफिनेशन दिया है दैट इज अ ग्रुप इज एनी नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन. ओके, मतलब क्या, कितने भी नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दो या फिर दो से ज्यादा, कई सारे ह्यूमन बींग्स एक साथ आते हैं एंड देयर इज रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन इन देम, दैट इज देयर इज टू वे कम्युनिकेशन. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय क्यूबर. Now next definition is a social group is a two or more persons in contact directly or indirectly. Social group क्या होता है? That two or more persons एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, या तो डायरेक्टली कांटेक्ट रहेंगे दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन वगैरह, और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब जैसे हमने मीनिंग में देखा था दैट दे आर हैविंग कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन, सो दैट इज दे आर इनडायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच अदर. Okay, so social group is a two or more persons in contact directly or indirectly. This definition was given by Gillian and Gillian. अभी जब हम इन तीनों डेफिनेशंस का एनालिसिस करते हैं दैट टाइम वी अंडरस्टैंड दैट सोशल ग्रुप जब हम बात करते हैं दैट टाइम इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली. हम कोई और एनिमल्स के ग्रुप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स. दैट इज सोशल ग्रुप जब हम कहते हैं दैट टाइम इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली. Okay, then next is that reciprocal communication is necessary. Reciprocal communication होना चाहिए, interaction होना चाहिए. First one क्या है कि human beings है, social group में human beings होने चाहिए. Next is उनमें reciprocal communication होना चाहिए. फिर जो third point है that is size of the group. Size of the group क्या होता है? दो या फिर दो से ज़्यादा लोग. Okay, minimum दो लोग तो होने ही चाहिए. And then next point, this is very important that कम्युनिकेशन में नॉट बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट मे बी इनडायरेक्टली ऑल्सो, इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेशन हो सकता है. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट नेसेसरी, मतलब फिजिकल हम साथ में ही रहने चाहिए ऐसा नहीं होता है. इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में तो फिर वीडियो कॉल्स होते हैं, दैट टाइम वी आर नॉट फिजिकली टुगेदर. ओके, बट एक डिस्टेंस होता है बट स्टिल देयर इज communication, there is interaction, we are exchanging our thoughts. Okay, so physical proximity is not necessary. So necessary क्या होता है? reciprocal communication and interaction necessary होता है, and कितने number of people present है. Okay, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग present होने चाहिए. That time we can say that a social group is formed. Next is अभी characteristics क्या होते हैं कोई ग्रुप के. अभी अभी मैंने बताया, सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर दैट एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए उसमें. ओके, फिर ग्रुप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट इज रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए. रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, एंड
The communication among the members should be always two ways. Two ways means वही reciprocal communication. One way communication does not constitute the group interaction. We should influence each other. One way communication नहीं होना चाहिए. Okay, two way communication होना चाहिए. अभी अगर ग्रुप फॉर्म होना है तो कुछ चीजें तो कॉमन रहेगी. तो कॉमन क्या होगा? इंटरेस्ट कॉमन हो सकते हैं अमंग द मेंबर्स. फिर जो वैल्यूज है लोगों के वो कॉमन हो सकते हैं. देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेंबर्स शुड बी कॉमन. सो कोई ना कोई चीज तो उन लोगों में, उन मेंबर्स में कॉमन होगी, विच इज व्हाई अ ग्रुप फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस. ओके, देन डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट ड्यूरेशंस. अलग अलग ग्रुप्स का एक अलग अलग ड्यूरेशन होता है और उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ाऊंगी तब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, कि कोई ग्रुप्स टेम्पररी होते हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हुए लोग बाद में द पीपल गेट डिस्पर्स्ड. और जो कोई ग्रुप्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे कि लाइफ लॉन्ग. फॉर एग्जांपल फैमिली, हम हमेशा फैमिली का एक पार्ट होते हैं. वैसे पर्पस के बारे में देखें तो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. ऑब्वियसली वी विल स्टडी अबाउट दिस इन टाइप्स ऑफ ग्रुप, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है दैट डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड different purpose. Next is formation of group also depends upon the situation that cause people to unite. So कोई ना कोई situation खड़ी हो जाती है. Okay, कोई ना कोई situation ऐसी आ जाती है because of which people unite at one place. Okay, and then the group formation takes place. For example, अगर हम देखें कि सपोज रोड पे अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ओके, तो वो एक सिचुएशन है. और थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोग क्या हो जाते हैं, वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, पीपल यूनाइट ओवर देयर. सो वो भी एक टाइप का ग्रुप है. Okay, so situation, some kind of situation may lead to the formation of group. Then it involves sense of unity and feeling of love and sympathy. जब एक ग्रुप फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, एक यूनिटी होती है. There is a feeling of love and sympathy towards each other. Then members have sense of we feeling. Members में क्या होती है, एक we feeling का sense होता है. Okay, this is a characteristic of group. Last is social groups are dynamic and not static. Social group कैसे होते हैं, dynamic. Dynamic means changing. Dynamic का meaning क्या है यहाँ पे, चेंजिंग. मतलब क्या, सोशल ग्रुप में फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है तो उसमें कभी मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, कोई मेंबर्स ऐड हो गए, कोई डिलीट हो गए, नहीं तो मेंबर्स का शायद इंटरेस्ट चेंज हो जाए, या फिर ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, विच इज व्हाई वी से दैट ग्रुप्स आर डायनामिक. ओके, ग्रुप्स आर चेंजिंग, वो स्टैटिक नहीं होता है. नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स. So on the basis of nature of interaction, okay, interaction कैसा है एक दूसरे के साथ. Based on that, group is divided into two types: primary group and secondary group. Then on the basis of degree of organization, group is divided into formal group and informal group. Then on the basis of duration of existence, group is divided into temporary group and permanent group. Then there are certain cultural interest group. Then there are reference groups. Then on the basis of size of the group, there is small group and big group. Then according to the nature of membership, the groups are divided into non-voluntary group, involuntary group and voluntary group. Then according to the territorial limitation, the groups are divided into natural territorial group, artificial territorial group and non-territorial group. Then groups are also classified according to the profession or occupation. Then classification on the basis of social class, इसमें horizontal group होता है, vertical group होता है. Then classification based on personal feeling, we have in group and out group in this type. Then classification on the basis of type and quality of relationship, here we have Gemeinschaft group and Gesellschaft group. So let's get started. So types of social groups में सबसे पहला है on the basis of nature of interaction, मतलब लोग एक दूसरे के साथ interact कैसे करते हैं. On the basis of that, we have two groups, primary group and secondary group. So primary group, it is characterized by face-to-face interaction. यहाँ पे क्या होता है, लोगों का एक दूसरे के साथ face-to-face interaction होता है. Then there is informal personal relationship, और लोगों में एक we feeling होती है. Okay, that we belong to that group. So there is some kind of we feeling on the part of members present in this group. Then they have permanency. मतलब क्या,
we can say that lifelong ये group हमारे साथ होता है. Okay, it is a permanent group and it is small in size. For example, family. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रुप. ओके, नाउ इट इज ऑपोजिट टू द प्राइमरी ग्रुप. जैसे सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, वैसे जैसे प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, वैसे ही सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होता है. ओके, देयर इज लिटिल फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड दिस इज मोर गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप एंड ये काफी फॉर्मल होता है. ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल इन नेचर. Then the people they have some goal oriented relationships. These groups are large in size. हमने देखा है that primary group is small in size, but secondary group is large in size. Okay, and they have little face to face communication. For example, cooperative society. Okay, now हम comparison करेंगे between the characteristics of primary and secondary group. So primary group का जो है, so first point is that it is small in size. Okay, मतलब less than 20 to 30 members होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे. And secondary group is large in size. Now next one is पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप अमंग दी मेंबर्स. मतलब क्या पर्सनल होगा, ये लोगों में ये लोग बहुत क्लोज हो गए टू ईच अदर, दे हैव सम क्लोज कम्युनिकेशन इंटरेक्शन विद ईच अदर, दे शेयर देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद ईच अदर. सो ऐसा एक पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होगा अमंग द मेंबर्स. बट इन सेकेंडरी ग्रुप there is indirect relationship and there is little personal affection. ज़्यादा personal affection नहीं होता है. Personal affection बहुत ज़्यादा primary group में होता है. Okay, then primary group में face to face contact होता है and secondary group में mostly communication media के through ही contact होता है. face to face contact ज़्यादा नहीं होता. Next point is that this is permanent membership. यहाँ पे क्या होता है, लोगों में एक permanent membership होती है एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, टेम्पररी मेंबरशिप होती है बिकॉज इट इज गोल ओरिएंटेड. नेक्स्ट वन इज दैट रिलेशंस अमंग मेंबर्स आर मोस्टली इनफॉर्मल. रिलेशंस कैसे होते हैं, इन प्राइमरी ग्रुप इनफॉर्मल होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप में रिलेशंस फॉर्मल होते हैं. ओके, एंड प्राइमरी ग्रुप नाउ दिस काइंड ऑफ रिलेशंस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड सेकेंडरी ग्रुप मतलब ये जो फॉर्मल रिलेशनशिप्स है या फिर वी कैन से टेम्पररी मेंबरशिप या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स, तो ऐसे रिलेशनशिप्स मोस्टली सिटीज में फाउंड होते हैं. ओके, सो रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट इज योर साइज ऑफ द ग्रुप. साइज यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे लार्ज. देन नेक्स्ट इज रिलेशनशिप कैसा है. प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप है और सेकेंडरी ग्रुप में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. आई विल जस्ट नोट डाउन दी पॉइंट्स ओवर हियर. फर्स्ट वन इज साइज, आपको याद रखना है. Then next is relationship कैसा है. Then our third point is contact कैसा है, face to face है या फिर communication media through है. Then next is membership कैसी है. Remember size, relationship, contact कैसा है, membership temporary है या permanent है. Okay, then relations formal है या फिर informal है. Okay, so relations is next point and last one is that give an example. जैसे कि प्राइमरी ग्रुप मोस्टली विलेजेस में फाइंड होते हैं एंड सेकेंडरी इन सिटीज. नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी जब हम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तब इतना याद रखना है कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा होंगे, ओके, उतना ही डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादा होगा. ओके, दैट सो इट इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स, दैट इज फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप. इसमें टू टाइप्स हैं. सो फॉर्मल ग्रुप्स they are organized, then members have definite rules. क्या होता है, बहुत ही organized group होता है ये. ओके, एक सर्टन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है इस इन ग्रुप्स में. देन मेंबर्स हैव डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी मेंबर्स है उनको एक डेफिनेट रोल दिया गया है, उनको वही रोल्स फॉलो करने हैं एंड दे हैव टू आल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर प्रोवाइडेड. ओके, और इस टाइप ऑफ ग्रुप्स में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स इन दिस ग्रुप्स.
These groups have, अभी यहाँ पे क्या होता है कि उस ग्रुप को कुछ नेम होगा, फिर सिलेक्टेड टाइटल ऑफिसर्स हो गए, इसमें इस ग्रुप का कुछ रिटन पर्पस होगा, ये ग्रुप्स में रेगुलर या फिर कॉमन एक मीटिंग होगी, ओके, देन देयर विल बी सम मीटिंग टाइम एंड मीटिंग प्लेस वेयर दिस मीटिंग्स विल बी हेल्ड। सो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जब हम बोलते हैं ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये पॉइंट हमारे ध्यान में ही आना चाहिए। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मल ग्रुप में कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ नेम होगा ग्रुप का, कुछ ऑफिसर्स, सिलेक्टेड टाइटल ऑफिसर्स हो गए, कुछ रिटन पर्पस होगा इस ग्रुप का, देन दिस ग्रुप्स विल कंडक्ट अ फ्यू मीटिंग्स आल्सो, ओके, ऑन सिलेक्टेड टाइम एंड प्लेस, एंड दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो मेंबर्स है उनका कुछ डेफिनेट रोल होगा, मेंबर्स हैव टू प्ले दिस डेफिनेट रोल्स। एंड इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है? इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द फॉर्मल ग्रुप। ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होते, यहाँ पे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओके, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रिजिड नहीं होते, ओके, रिजिडली किसी इंसान पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स नहीं कर सकते। Then members they have maximum freedom to think and act. Members को जैसा लगे वो वैसा think कर सकते हैं, वैसा act कर सकते हैं. They can share their thoughts with each other and there are no restrictions. Okay, हमने formal groups में देखा था that there are many restrictions. But in informal groups there are no restrictions. Example, friendship groups, play groups. So number of rules and regulations governs the functioning of group. इसमें आपको ये याद रखना है कि जो rules and regulations है they govern the functioning of the group. So now let us compare between characteristics of formal and informal group. So सबसे पहला जो point है that is कि formal group में कुछ definite role होगा and कुछ rules होंगे of operation and according to these rules the group will act. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ग्रुप। यहाँ पे कोई डेफिनेट रोल्स नहीं होते इंडिविजुअल्स के या फिर रूल्स भी नहीं होते हैं। अभी फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है कि फंक्शनिंग करने के लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही वो ग्रुप फंक्शन करते हैं। एंड इनफॉर्मल ग्रुप इज एक्जेक्टली ऑपोजिट टू इट। यहाँ पे कोई डेफिनेट प्रोसीजर नहीं होता फॉर फंक्शनिंग। फॉर्मल ग्रुप इज मोर स्टेबल। क्यों होता है ये स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ डेफिनेट रूल्स है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी है, सो इट इज स्टेबल। एंड इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है दैट देयर इज लेस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लेस है तो ये ग्रुप्स किसी भी वक्त टूट सकता है। नेक्स्ट इज रिजिडिटी इज बीइंग एनफोर्स्ड ऑन द बिहेवियर। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप खुद के मन का कैसे भी एक्ट नहीं कर सकते, बट हियर इन इनफॉर्मल ग्रुप वी आर फ्री टू एक्ट एंड थिंक। हम हमारे मन से एक्ट कर सकते हैं, वी कैन थिंक, कैन शेयर आवर इमोशंस विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। An example of formal group is village council, service cooperative, labor union, and for informal group there are examples like play group, friends group, then group of neighborhood, जो हमारे neighbors है वो हमारे friends and play groups. Next is on the basis of duration, मतलब कितनी देर तक वो group था. Okay, duration is related to time. Remember कितनी देर तक वो group था, इसके बेसिस पे हमारे जो ग्रुप्स है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी ग्रुप्स एंड परमानेंट ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी ग्रुप। अभी ये जो ग्रुप है इट इज असेंबल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। ग्रुप असेंबल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, काफी कम समय के लिए ये ग्रुप एक साथ होता है। इमोशंस आर नॉट अटैच्ड, इसमें इमोशंस अटैच नहीं होते हैं, ओके, एंड इट इज जस्ट द मियर कलेक्शन ऑफ फिजिकल बॉडी। सिर्फ लोग साथ में आते हैं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, जस्ट it is just the mere collection of physical bodies. The group size is indefinite and unorganized. Group का जो size है ना वो भी indefinite होता है, कितने भी members होते हैं, and it is not at all organized. For example, crowd, mob and audience. Now let us see what is crowd, mob, audience, public. Okay, so first one is crowd. So remember ये जो है यहाँ ये सब टेम्पररी ग्रुप के टाइप्स है, और यू कैन से दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेम्पररी ग्रुप। टेम्पररी ग्रुप मतलब क्या, ऐसे ग्रुप्स जो बहुत कम समय के लिए एक साथ रहते हैं, ओके, दे आर असेंबल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इट इज जस्ट द मियर कलेक्शन ऑफ फिजिकल बॉडीज एंड इमोशंस आर नॉट अटैच्ड। इंडेफिनिट होता है एंड अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये ग्रुप्स।
So first one is crowd. Most elementary type of group. Elementary means basic. कैसा है ये? बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ ग्रुप है. लोग सिर्फ आते हैं, ओके, एंड देन दे चले जाते हैं. फिनिश. इतना ही होता है क्राउड में. सो फर्स्ट इज it is the aggregation of human being in which individuals begin to respond as a unit to common focus of attention and dispersion when the interest vanishes. मतलब अगर सपोज कोई इंसिडेंस हुआ है, ओके, दैट इज देयर कुछ दैट इज द फोकस ऑफ अटेंशन. फॉर एग्जांपल अगर कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं, ओके, दैट बिकॉज दैट इज द फोकस ऑफ अटेंशन. फिर जब एक बार उन्हें समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं, और जब उनका इंटरेस्ट उस चीज से चला जाता है, दैट टाइम पीपल स्टार्ट डिस्पर्सिंग फ्रॉम दैट प्लेस. वो भी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं. सो जस्ट द मियर कलेक्शन ऑफ फिजिकल बॉडीज एज वी हैव ऑलरेडी सेड, ओके. सो ह्यूमन बीइंग्स कम समय के लिए दे एग्रीगेट, दे कलेक्ट एट वन प्लेस और टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अटेंशन एंड दे डिस्पर्स व्हेन द इंटरेस्ट वैनिशेस. नेक्स्ट इज पब्लिक. पब्लिक मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ओके. अभी रिमेंबर, क्राउड मतलब एलिमेंट्री ग्रुप मींस बेसिक एंड पब्लिक मींस सेकेंडरी ग्रुप. और इसका जो बिहेवियर है इट इज ऑल्सो क्राउड लाइक बिहेवियर. क्राउड के जैसे ही ये भी बिहेव करते हैं. मेंबर्स अलग अलग प्लेसेस से आते हैं एंड दे हैव मेनी डिफरेंसेस अमंग्स ईच अदर, बट कुछ तो एक बात उनमें कॉमन होती है, ओके. दे कम टुगेदर फॉर गेटिंग कॉमन डायरेक्शन. कॉमन डायरेक्शन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रुप है, कोई लोग हैं जिन्हें रीडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो सबको यही सजेस्ट करेंगे दैट प्लीज डू रीड, ओके. रीडिंग इज वेरी बेनिफिशियल, इट इज वेरी गुड. अगर कोई लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो सभी को एक ही सलाह देंगे दैट एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ओके. आप बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से, सो यू शुड एक्सरसाइज डेली, ओके. सो एक कॉमन उनका डायरेक्शन होता है, और वो सब सजेस्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑडियंस. अभी ऑडियंस मतलब क्या? यहाँ पे भी जो पब्लिक होती है उनका एक दूसरे से कोई भी इंटर रिलेशन नहीं होता है, ओके. इट इज अ पब्लिक विदाउट इंटर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ओके. कोई रिलेशन नहीं होता है इंडिविजुअल्स एंड इट इंक्लूड्स बोथ लिसनर्स एंड स्पेक्टेटर्स. मतलब क्या? सुनने वाले भी होते हैं एंड देखने वाले भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल थिएटर. हम थिएटर में जाए या फिर कोई रोल प्ले वगैरह कर रहा है वो देखने के लिए जाएंगे, सो ऑब्वियसली वी गो ओवर देयर एज ऑडियंस, ओके. सो हम लिसनर्स भी होते हैं यहाँ पे एंड स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले होते हैं एंड सुनने वाले भी होते हैं. पब्लिक में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है. Now next is mob. So crowd in positive action and motivated by anger or other emotional aspects. It usually has a leader and members may use symbols or slogans to express their emotion. ये पिक्चर आप याद रखो जब mob वर्ड आता है, ओके. ये पिक्चर आप याद रखो. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कई सारे मेंबर्स है एंड दे आर एक्सप्रेसिंग सम इमोशन, ओके. सबके चेहरे पे हमें गुस्सा दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में स्पेशली, ओके. सो व्हाट हैपेंस, इट इज अ क्राउड. ये भी क्राउड ही होता है इन पॉजिटिव एक्शन. अगर लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती है या फिर दे आर अगेंस्ट सम काइंड ऑफ रूल होगा जो उन्हें पसंद नहीं आया, या फिर उस सोसाइटी में ऐसी घटना हुई होगी जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, which is why they are expressing their anger, okay, or they express some other emotional aspect. और क्या होता है यहाँ पे, मॉब में एक लीडर तो जरूर होता है और मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ सिंबल्स या फिर स्लोगन्स यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. नाउ नेक्स्ट इज हर्ड. नाउ व्हाट इज हर्ड? ये भी एक टाइप ऑफ क्राउड ही है. दिस इज ऑल्सो क्राउड. यहाँ पे भी लीडर होता है लेकिन यहाँ पे नो स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोटिवेशन. इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोटिवेशन नहीं होता है जैसे हमने मॉब में देखा, ओके. क्या होता है, इट इज दे आर मोटिवेटेड बाय सर्टेन इमोशनल एस्पेक्ट. इस मॉब में इम्पोर्टेंट यही है कि कुछ इमोशनल एस्पेक्ट होगा, ओके. बट हर्ड में क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इमोशनल मोटिवेशन. Then members obey the orders of leader without questioning. जैसा लीडर बोलेंगे वैसा ही मेंबर्स करेंगे and they will not question their leaders. अभी इतना तो हमने देखा है इन
टेम्पररी ग्रुप, ओके, सो डू रिमेम्बर इट। टेम्पररी ग्रुप में हमने अलग अलग टाइप्स देखे हैं, ओके, क्राउड देखा है, पब्लिक, ऑडियंस, मॉब, हर्ड, इतने सब हमने। दीज आर दी टेम्पररी ग्रुप, ये थोड़े समय के लिए एक साथ रहते हैं, ओके, रिमेम्बर दैट। नाउ जब हम परमानेंट ग्रुप की बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट इट इज टुगेदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोग क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया पे काफी समय तक साथ रहना, ओके, एज अ परमानेंट ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में काफी लंबे समय तक एक साथ रहता है, तो हम उसे परमानेंट ग्रुप कहते हैं, ओके। एंड हियर यहाँ पे क्या होता है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स होती है एक दूसरे के साथ, एंड मेंबर्स डू हैव डेफिनेट रोल्स टू प्ले, एंड ग्रुप्स रिमेन टुगेदर फॉर ग्रेटर लेंथ ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी, स्टेट, रीजन, ट्राइब, फैमिली, एक्सेट्रा। Now next is cultural interest groups. These groups are created for the development of special interest. क्यों create किए हैं ये group? For the development of special interest. कोई ना कोई special interest होगा members के को, इसलिए ये groups create हो जाते हैं। For example किसी को economic interest होगा, किसी को political interest होगा, कोई एजुकेशनल इंटरेस्ट वाले लोग हो गए, या फिर किसी को रिक्रिएशनल इंटरेस्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट दिस ग्रुप्स गेट क्रिएटेड, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, these are the special interest groups, or you can say the cultural interest groups. इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एक ग्रुप बनता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रेफरेंस ग्रुप। So reference group is with which an individual feels identified. Okay, एक इंडिविजुअल को क्या होता है, आइडेंटिफाइड फील होता है, एंड हुज एटीट्यूड एंड वैल्यूज से एडॉप्ट। ओके, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके एटीट्यूड या फिर वैल्यूज हम एडॉप्ट कर सकते हैं, ओके, जिस कोई किसी ग्रुप को अगर हम आइडियल ग्रुप मानते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, उनके कुछ वैल्यूज या फिर कुछ एटीट्यूड हम एडॉप्ट करते हैं। सो दिस इज नोन एज रेफरेंस ग्रुप. It is a group of persons whom an individual consults before taking an important decision. अगर हमें कुछ important decision लेना है, तो ऐसा हम उस ग्रुप को एक रेफरेंस ग्रुप मानते हैं, that is हम उस ग्रुप को एज अ काइंड ऑफ आइडियल ग्रुप मानते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन मेंबर्स को एक बार कंसल्ट करते हैं बिफोर टेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। So it is a group with which one makes comparison in order to evaluate one's achievement, performance and ambition. हम उस ग्रुप के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लाइक उन्होंने कैसे इतना अचीवमेंट हासिल किया है, हम अभी कहाँ है, हमने क्या करना चाहिए सो दैट इवन वी गेट दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट, या फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अभी हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो हमने क्या करना चाहिए सो दैट इवन वी परफॉर्म बेटर लाइक दैट ग्रुप। ओके, सो इतने सारे पॉइंट्स हैं इस रेफरेंस ग्रुप में। फॉर एग्जांपल स्कूल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, फैमिली मेंबर, या फिर सेलिब्रिटी ग्रुप्स भी हो सकता है। ओके, सेलिब्रिटीज, ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ग्रुप। अभी साइज ऑफ ग्रुप पे साइज से पता चलता है, एक स्मॉल होगा एक बिग होगा। ओके, सो देयर इज अ स्मॉल ग्रुप एंड बिग ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, नाम से ही समझ में आता है कि ऑब्वियसली जो साइज है वो लिमिटेड होगी। मेंबर्स आर लेस, सिर्फ 2 to 60 ही मेंबर्स होते हैं। 60 तक मेंबर्स आए, इट मींस दैट इट इज अ स्मॉल ग्रुप। जब 60 से ज्यादा मेंबर्स आ जाएंगे, दैट टाइम वी से दैट इट इज अ बिग ग्रुप। Now the members they have direct relationship with each other. उनका direct relationship होता है एक दूसरे के साथ, they share their feelings with each other. Okay, and the members can identify each other. Okay, तो वो एक दूसरे को members एक दूसरे को identify कर सकते हैं। For example, family, sports club, etc. They have certain close relationship with each other. Okay, तो आप ये ध्यान में रखो इन स्मॉल ग्रुप। इन बिग ग्रुप में क्या होता है, ये लार्ज होते हैं साइज में। स्मॉल ग्रुप इज साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है, फिर वी कैन से दैट इज स्मॉल, मेंबर्स कम होते हैं। बिग ग्रुप में एग्जैक्टली अपोजिट, मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओके, कंसिडरेबली लार्ज, फ्रॉम 61 to even 1000 people or more people also. The relation is not direct, ऐसा direct face to face interaction वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। The relationship is not close, ये लोग ज़्यादा close नहीं होते एक दूसरे से। The relationship is extremely formal. For example, university, army, etc. Now next is on the basis of nature of membership.
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अभी मेंबरशिप कैसा है उस ग्रुप में, ओके हमारा एक मेंबरशिप वो उस ग्रुप में कैसा है, इसके बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द ग्रुप्स इन 3 टाइप्स: नॉन वॉलंटरी ग्रुप, इनवॉलंटरी ग्रुप एंड वॉलंटरी ग्रुप. नाउ फर्स्ट वन इज द नॉन वॉलंटरी ग्रुप. नॉन वॉलंटरी ग्रुप में क्या होता है, दैट मेंबर्स इन दिस ग्रुप, दैट सॉरी द मेंबरशिप इन दिस ग्रुप इज कंपल्सरी. मेंबरशिप कैसी होती है, ऑब्वियसली जब हम नेचर ऑफ मेंबरशिप देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आना चाहिए कि मेंबरशिप कैसी है, कंपल्सरी है या फिर नॉट कंपल्सरी. सो जब हम नॉन वॉलंटरी की बात करते हैं, दैट टाइम द मेंबरशिप इन दिस ग्रुप इज कंपल्सरी एंड मेंबर्स हैव नो चॉइस. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओके यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. ओके कंपल्सरी है कि आपको उस ग्रुप का मेंबर बनना ही पड़ता है. And you also have to follow all the social values, conventions, traditions, okay, determine the रिलेशनशिप. उस ग्रुप में जो भी ट्रेडिशंस वगैरह है वो आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्जांपल योर कास्ट, रिलीजियस ग्रुप, एज ग्रुप एक्सेट्रा. Now next is voluntary group. Membership is not compulsory. यहाँ पे क्या होता है, membership compulsory नहीं होती है. अगर आपको किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होना है, अगर आपको किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होना है, तो it completely depends on you. So that is voluntary. Not compulsory means voluntary. Remember, that is membership is voluntary, or we can say that membership is not compulsory. Members have no compulsion to participate in group activity. अगर कोई group activity होगी तो ऐसा compulsory नहीं है कि आपको उसमें participate ही करना है. Okay, it completely depends on you. अगर आपको participate नहीं करना है तो भी it's okay. For example, youth club, gossip group, friends group, etc. Now next is the involuntary group. मेंबरशिप ऑफ विच इंडिविजुअल्स को कोई चॉइस नहीं होता है, ओके. एंड यहाँ पे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कोई भी रिक्वायर्ड एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ओके, मेंबरशिप ऑफ विच एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव एनी चॉइस. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओके. आप और नॉट रिक्वायर्ड टू पुट एनी इफेक्ट, आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड यू हैव नो चॉइस, यू आर अ मेंबर, यू आर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. इसका मतलब होता है इनवॉलंटरी ग्रुप. सो फॉर एग्जांपल, मेंबरशिप बाय बर्थ और रेसिडेंस सच एज फैमिली, नेबरहुड. So yes students, this is all for today. The remaining types of groups and other whatever we have seen, that is the motivation in group formation, then factors affecting formation of group, role of social groups, ये हम part B में देखेंगे. Okay, this is all for today and thank you so much.